यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस सिलसिले में रियासत में सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर रियासती सतह के साल 2018 के अवार्ड पाने वाले असातिज़ा की इज्जत अफजाई की गई। तकरीब में नाज़िम तालीम जम्मू राकेश कुमार सरंगल के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से इंतजामात किए गए थे। महकमे तालीम की तरफ से मुनक्किदा इस तकरीब की मेज़बानी सेक्रेटरी स्कूली तालीम रिगजिन सिम्फल ने की। तकरीब के आगाज पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग की तालिबात ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पेश की।
उस्ताद का पेशा निहायत ही मुकद्दस पेशा है, जिसका एहतराम हम सब पर फर्ज है। उस्ताद ही वो सरचश्मा है जहां से हर कोई फैज हासिल करता है। इस साल रियासती सतह पर मर्द असातिज़ा में ये अवार्ड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन गांदरबल के हिलाल अहमद लोन ने हासिल किया, जबकि खवातीन जुमरे में रियासती सतह का ये अवार्ड जिला सांबा की गर्ल्स मिडिल स्कूल समेलपुर जोन पुरमंडल की उस्तानी चरणप्रीत कौर ने अपने नाम किया। इस अवार्ड में मुंतखबा उस्ताद को 1 लाख रुपए नकद, एक शॉल और एक एजाजी सनद दी जाती है। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी स्कूली तालीम रिगजिन सिम्फिल ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा। Thank you very much. So I always believe custodians and conscious keepers of the future generation of our nation. And with the brief experience that I had as Secretary School Education, I'm assured that the future of the children of Jammu and Kashmir are in the hands of some of the brightest minds that are gathered here in this hall today. They say data speaks for itself, and if you look at the data of census 2001 and 2011, one gets to see that in terms of the fall in illiteracy or the gain in literacy, whereas the entire nation had a progress of about 10%, the state of Jammu and Kashmir had a progress of about 13%. That itself, I feel, is an evidence of the talent and the potential that we have among the teaching fraternity. While we celebrate such achievements, it's also a fact that there are certain challenges within our system, be it the literacy rate among the females or the national achievement scores that we have seen. But I'm hopeful that taking base of the 2010 and 2001 and 2011 census, we have immense potential, and hopefully we'll be able to overcome those small challenges also. So today's event is a celebration of teaching and is a celebration of learning, and it is a very modest gesture to appreciate the contribution that our teachers have given in the progress that the state of Jammu and Kashmir has taken. And one always feels as to what is the purpose of education. I mean, there are n number of things one can list out. People have their own perception, their own life experiences. I always felt that teaching is the art of grooming leaders. Inherently, there's a concept of nature and nurture. I always believe in the philosophy of nurture, that nature has made us all equal. It is for the responsibility and the vision of the teacher to bring out the best out of the students. I come from a very remote place of the state, Ladakh, most of you know that. And based on my own life experiences, I always felt that school children in Jammu and Kashmir are very talented but shy. So it is very important, I think, that the nudge that is required at the initial stages of one's education is the responsibility of people who are here, gathered here, and officers who are gathered on the stage and organizing this event. And this reminds me of a quote from APJ Abdul Kalam Sahab, who always nudged students, who always motivated them to think big and dream big. Personally, in my own life, I have very close friends who have been very talented, gifted, as to say, if one may say so, but they could not make it, as to say, big in life because they never dreamt. They always had this negativity or this perception that big things are meant for others, it's not meant for me. That ultimately the aim of education is to groom leaders in the society. महकमे तालीम की तरफ से मुनक्किदा इस तकरीब पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर डॉक्टर शेख जावेद अहमद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन अहमद और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी भी मौजूद थे, जिन्होंने तकरीब के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया।
अवार्ड पाने वाले असातिज़ा की इज्जत अफजाई की रस्म अंजाम देने के बाद मेहमान खुसूसी गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने तकरीब से खिताब किया। They say that a teacher, shapes up our careers and our personalities, and this is really true in my case. When I joined college, that's Amta College, long time back in 80s, and I was a bit lost, and because when you go to lab, when you go to class, I was a student of physics, and so when you go to lab, they teach you inclined planes, and they teach you those pendular motion. It's very boring. It was very frustrating. And but then we had a teacher, Dar Saab. I still remember him very well. Had a very different perception of teaching, very different way of teaching. And he used to say that look at the skies, look at the heavens. You see stars and you see galaxies, and now look at the pendular motion. They are all connected. So what is the connection? It's a gravity, of course. So that's the way it has to be done. As a teacher, you have to give a bigger picture to your students. Otherwise, students will get confused. Also, it's a very special relationship between a teacher and a student. I met him after a few years, and I had moved on. I went to Mumbai. I joined IIT Bombay. So I met him, and he had tears in his eyes. And he said, "I'm so proud of you, and you made it IIT." At that time, IIT was something great. 80s. Now it's nothing great about it. So at the end of the year, I had decided, to pursue a career in physics, and so this is whatever I am here, whatever I have contributed, whatever little thing as a scientist, as a physicist, it is all because of those teachers, especially that side. Back actually, I went to school with my daughter, and one person came running to me. It took some time, few minutes, to recognize, and so it's a very special. Although he had passed out 10 years back, and may I now request Honorable Vice Chancellor, Central University of Kashmir. All of us, as all of us are teachers and have served this education department for a quite long time. Well, it is a matter of fact, there is no parallel profession so far as teaching as a profession is concerned. Maybe at times, as against some bureaucrat or some big officer, you as a teacher may feel small because of the perks and privilege which a teacher in our system does not enjoy. But a teacher is a teacher who always remains as a teacher. Well, I have been a poor teacher throughout my life. I have taught for about 40 years. And even as a poor teacher, I feel I have earned a lot. As Professor Javed rightly said, whenever you go anywhere, if you have played some innings, if you have a 10, 20 years service, you go to any public sector, anywhere for your own some issue, you will find somebody gets up and salutes you and tells you, "Sir, you have been my teacher in this and that school, in this or that college or university," whatever the case may be. When you are not, it takes some time to you as a teacher to recollect the student to whom you have taught 20 years back, but you feel elevated. You feel elevated that he is my student to whom I have taught 30 years, 20 years back. My dear colleagues, we must note it that a teacher who is a good teacher means one who attends to the student with his open heart, with his open mind. He never dies, she never dies. Even today, when we have some of us have crossed, I think 30, 40 or even myself 65 years of age. बस एक प्याम कहना
is first and foremost that I will wish all the teachers a happy Teachers' Day. It also applies to me, who has been a teacher all through my life. And I was just discussing with two of the directors of the school education that emotionally I'm a school teacher, and that too a primary school teacher. I always sit in the primary school. So therefore, my salutes to you, and I'm sure in the hall I'm actually addressing those passionate minds, those passionate bodies, which are passionate to change the paradigm of an individual that is a student in your class. The teaching, of course, I belong to the family of teachers. My father was a teacher, my grandfather was a teacher, my wife is a teacher, so everybody is a teacher. And it actually gives me a kind of a license to talk about problems in the teaching community. So therefore, I will not only talk about the goodies of the teachers, but I also talk about the baddies of the teaching profession. I have a license, therefore I can do that. So probably bureaucrats may not do it because you do not belong to them. Therefore, when I finished my PhD, I had a couple of years as a postdoc fellow, what we call postdoctorate fellow in Tokyo Medical School. What I realized there is that I had a lot of. इससे पहले कि उन असातिज़ा को यहाँ इज्जत अफजाई की जाए, उस्ताद हूँ जस्ते कुदरत की हसीन ईजाद हूँ, मर भी जाऊँ तो भी जिंदाबाद हूँ, अपनी शागिर्दों को हरदम याद हूँ। उस्ताद का पेशा निहायत ही मुकद्दस पेशा है, जिसका एहतराम हम सब पर फर्ज है। उस्ताद ही वो सरचश्मा है जहां से हर कोई फैज़ हासिल करता है। रियासत जम्मू कश्मीर में उस्ताद के आला मकाम को समझते हुए और इसकी दयानतदारी, खलूस, तनबीह और मेहनत को देखते हुए इसकी कई सतहों पर सराहना की जाती है। साल 2004 से जहां कौमी सतह पर उस्ताद की इज्जत अफजाई के लिए नेशनल अवार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई, वहीं इसी साल रियासती सतह पर भी काबिल और मेहनती असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए स्टेट लेवल टीचर्स अवार्ड दिए जाने का आगाज हुआ। मुल्की सतह पर जहां अब तक रियासत जम्मू कश्मीर के 20 से ज़ायद असातिज़ा को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, वहीं रियासती सतह पर भी कई काबिल और मेहनतकश असातिज़ा को स्टेट लेवल एजाज़त दी गई। इस साल नेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर का अवार्ड वादी के दूर दराज और तालीमी लिहाज से पसमानदा इलाके ठंडीपोरा पगवाड़ा से तालीम रखने वाले बुनियादी तौर उस्ताद और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जिन सलाहियतों की बुनियाद पर दिए जाते हैं, उनमें उस्ताद की तरफ से स्कूलों में बच्चों के इंदराज में इजाफा करना, तालीम के फैलाव में आम लोगों की शिरकत, नताइज की शरह में इजाफा, तालीमी और सकाफती सरगर्मियां, तसानीफ और दीगर सलाहियतें शामिल हैं। गांदरबल के हिलाल अहमद लोन ने हासिल किया, जबकि खवातीन जुमरे में रियासती सतह का यह अवार्ड जिला सांबा की गर्ल्स मिडिल स्कूल समीलपुर जोन पुरमंडल की उस्तानी चरणप्रीत कौर ने अपनी नाम किया। इस अवार्ड में मुंतखबा उस्ताद को 1 लाख रुपए नकद, एक शॉल और एक एजाजी सनद दी जाती है। जाह हशमत की मुझे चाहत नहीं, माल दौलत की मुझे हाजत नहीं, announced that this year's 2017's NCA डिग्री के हामिल हिलाल अहमद लोन ने अपनी सर्विस सेवा के दौरान 590% नताइज
हासिल की। रियासती महकमे तालीम Thank you very much. कौर ने आखिरी किया। चरणप्रीत कौर 2009 में महकमे तालीम NCERT के लिए नेशनल रिसोर्स पर्सन की हैसियत से काम की अंजामदही के दौरान गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल काठगोदाम में डिपार्टमेंट के मैं तो चाहता कि हायर एजुकेशन के भी होते, लेकिन शायद वो हो न सका। और मुझे बताया गया है कि यहाँ लद्दाख से और जम्मू से भी टीचर्स आए हैं, कश्मीर से तो आए हैं। तो इस बात के लिए मैं डॉक्टर ईतू और उनके कलीग्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया टीचर्स डे पर 5 सितंबर, जो कि होना ही चाहिए था। ये तो एक रिवायती फंक्शन होता है और जायज़, क्योंकि इस दिन आप सबको ये मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्शन का, इसको उर्दू में या हिंदी में ये कहेंगे कि अंदर की बात, अंदर अपने आप को अंदर परखना। इसके लिए एक बड़ा अच्छा हिंदी शब्द भी है, उर्दू का भी एक अच्छा लफ्ज़ है, वो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ओके। तो इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये भी नहीं भूलना चाहता, ये मौका नहीं गंवाना चाहता कि मैं आप सबको आज के दिन की मुबारकबाद पेश करूं। जैसे कि इन्होंने अभी मेरे से पहले जिन्होंने यहाँ पर तकरीर की, उन्होंने आपको हैप्पी टीचर्स डे कहा, तो समझो ये हैप्पी बर्थडे जैसा विश है। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी बर्थडे। आज के दिन आप फिर से शायद पैदा होते हैं और जो कि इंट्रोस्पेक्शन होती है, ये सोचा जाता है कि क्या हम कर रहे हैं, अभी तक क्या किया है, आगे क्या करना है। तो मैं वाकई आपको इस दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रिवायती तौर ये भी देखा जाता है या बताया जाता है कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में ये दिन मनाया जाता है, बहिस्ते टीचर्स डे, क्योंकि वो खुद एक बड़े महान और अजीम उस्ताद रहे हैं और उनकी दी हुई जो तरबियत है और जिस तरीके से वो रोल मॉडल थे सारे टीचर्स के लिए, हमारे मुल्क में नहीं बल्कि इंटरनेशनली उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जाता था, उनकी रिकॉग्निशन थी कि वो एक बहुत ही अजीम फिलोसोफर थे और एक बहुत ही अजीम टीचर थे, बुनियादी टीचर थे, लेकिन फिलोसफी पढ़ाते थे, रिलीजन, फिलोसफी। सो ही रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनकी डिस्टिंक्शन यही थी कि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे और जिनका नेम एंड फेम सारी दुनिया में पहुंचा था और सारी दुनिया तक पहुंचा था, मुख्तलिफ मुल्कों में उनको मानते थे कि और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनको एक स्कॉलर प्रेसिडेंट कहते थे। तो मैं मुख्तलिफ मौजू पर लेक्चर करता था।
तकरीब के आखिर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने मेहमानों का रस्मन शुक्रिया अदा किया। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब आए हुए चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू सरंगल साहब, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्रा तुफैल साहब, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, टीचर्स फोरम एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिफरेंट बहुत सारे जुमाज आए हुए हैं। मैं सबसे पहले टीचर्स फ्रेटर्निटी को आज के दिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ऑनरेबल एडवाइजर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस तकरीब में एज चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट करके हमारी इज्जत अफजाई की। यहाँ मीडिया से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के जो ड्यू पब्लिसिटी इस आज की तकरीब की दी है, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ और स्टेट अवार्डीज़ ने आज इस तकरीब में शमूलियत की। इसके अलावा मैं 2017 अवार्ड पाने वाले 2 टीचरों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ आए हुए जो मेहमान, उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में मैं जो हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स जम्मू से आए हैं और लद्दाख से आए हुए हैं। तकरीब के हाशिए पर चंद तलबा और अवार्ड याफ्ता असातिज़ा ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के मीडिया सेंटर से बात करते हुए कहा, क्योंकि एक टीचर अपना स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो उनसे ज़्यादा बड़ा ऊपर पोस्ट पे पहुँचे, और एक टीचर की वजह से ही हम एक अच्छा डिसिप्लिन एक इंसान बन जाते हैं। और विदाउट टीचर वी आर लाइक नथिंग। इट्स लाइक विदाउट टीचर वी विल बी, मतलब दिस सिटी एंड दिस वर्ल्ड विल बी लाइक अ जंगल विदाउट शेर, विदाउट देम विल बी लाइक अ बॉडी विदाउट हार्ट। तो इस तरीके की सिचुएशन एक टीचर के बगैर होती है। तो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माय टीचर्स जिन्होंने भी मेरे को बचपन से अभी तक पढ़ाया और जो आगे पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैं आगे इंशाल्लाह जो भी बनूंगी, जो भी इंशाल्लाह कुछ भी बनूं आगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही बनूंगी। थैंक यू। हाँ सर, आज के इस दिन को 5 सितंबर को बहैसियत टीचर्स डे मनाया जाता है। तो मैं पूरी टीचर कम्युनिटी की जानिब से तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी गवर्नमेंट है हमारी, और हमारे जो आवाम है, स्टूडेंट्स है, इन्होंने इसमें आजकल के दुनिया में इस वक्त टीचर का काफ़ी अहम रोल है, और इस रोल को निभाते हुए हम कोशिश करते हैं कि अपने स्कूलों में, और जो एजुकेशन एक रीढ़ की हड्डी होती है एक सोसाइटी की, तो टीचर का एक अहम तरीन रोल बनता है। एक एमबीआई मिशन है और एक एमबीआई काम है। और मैं टीचर्स को इस मौके पर यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा जो कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लगता है कि कहीं टीचर्स ने अपना जो वकार खो रखा है, तो अगर हम तनदीही के साथ, हम ईमानदारी के साथ अपना काम, अपनी ड्यूटी निभाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी कम्युनिटी में उस्ताद को वापस वो मुकाम हासिल हो सकता है जो उसको पहले से लोग देते आए हैं। तो इस मौके पर मैं खुशी का इज़हार करता हूं कि आज भी टीचर की बहुत ही रेस्पेक्ट की जाती है, और आज टीचर्स के एजाज़ में हमारे डिपार्टमेंट ने इतना अज़ीमुशान प्रोग्राम मुनक़िद किया है। तो हम सारे लोगों का, मीडिया पर्सनस का, मीडिया बरादरी का, और खुसूसन अपने अवाम का जिनके दिलों में अभी भी टीचर की इज़्ज़त है, तो इस हवाले से मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं चरणप्रीत जम्मू कश्मीर से आप सबका इस शिक्षक दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक शिक्षक ही ऐसा स्रोत है जो हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। टीचर को नेशन का बिल्डर कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि वही आने वाली नस्लों को एक अच्छा शक्ल देकर वो एक भारत का भविष्य तैयार करता है। तो मैं आप सबसे यही संदेश है आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब भी मतलब बच्चों के साथ काम करें, हम उनके लिए तन मन धन से काम करें, ताकि हम उन्हें अपने अंदर जो बेस्ट है वो निकाल के उनके अंदर जो बेस्ट है उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन से काम करें, ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें टीचर कम्युनिटी में। और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज यहाँ पे हमें सम्मान देने के लिए बुलाया गया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जो इस सफ़र में ज़िंदगी के मेरे साथ जुड़े रहे, और हर इंसान से मैंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखा और उसको मैंने अपने निजी जीवन में अमल में लाया और उन्हें मैं अपने